आदाब नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के आर्ट्स फैकल्टी कैंपस में, जहाँ डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन और ऑल इंडिया रेडियो की एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीज़न की जानिब से मुश्तरका तौर पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया है। तो आइए चलिए और शामिल होते हैं इस सेमिनार में। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉल नंबर 22 में एक सेमिनार के जरिए सिंधी, फारसी और दरी के नामवर शायर और अदीब डॉक्टर हारूमल ईसरदास सदरंगानी को याद किया गया। AIR एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन के दरी सेक्शन और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मिलकर इस सेमिनार का इनेकाद किया। इस सेमिनार में रेडियो और उर्दू फारसी अदब से जुड़ी कई अहम शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें ऑल इंडिया रेडियो के ADG जनाब PA नायडू, मुल्क में ईरान के डिप्टी कल्चरल काउंसलर जनाब हुज्जतुल्लाह आबिदी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के शुएब फारसी के सदर जनाब अलीम अशरफ खान, जनाब डॉक्टर चंद्रशेखर, AIR में एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन के डायरेक्टर जनाब अमलान ज्योति मजूमदार, दरी सर्विस के इंचार्ज जनाब अंजर नजमी के नाम अहम है। इनके साथ साथ फारसी अदब से रिश्ता रखने वाले असातिज़ा और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा JNU और जामिया मिलिया इस्लामिया के तोलबाओं तालिबात भी अच्छी तादाद में मौजूद थे। शुरुआत मेहमानों के इस्तकबाल से हुई। फिर इसके बाद इसका बाज़ाब्ता आगाज किया गया, जिसमें डॉक्टर सदरंगानी की हयात व खिदमात पर रोशनी डाली गई। डॉक्टर सदरंगानी रोज़े 22 अक्टूबर डॉक्टर सदरंगानी 22 अक्टूबर 1913 को शहदादपुर ज़िला सांगढ़ पाकिस्तान में पैदा हुए और अपनी शुरुआती तालीम DG कॉलेज और नेशनल कॉलेज सिंध में पूरी की। वो DG कॉलेज में शोबे फारसी के सदर मुकर्रर हुए और दर्स व तदरीस के उमूर को अंजाम दिया। दौरान तालिब इल्मी उनका आना जाना लेख राज सिंह के दौलत कदे पर हुआ करता था। इस आमद रफ्त ने उनकी तरबियत एक मशहूर शायर की शक्ल में की और वो रुबाइयात सिंधी के बादशाह मुक़ल्लिब हुए। आपने एक मुद्दत तक ऑल इंडिया रेडियो के फारसी सेक्शन में बहैसियत मुदीर काम किया। आखिर में ऑल इंडिया रेडियो के सिंधी सेक्शन में डायरेक्टर की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया। वबिल आखिर लक़ब पादशाह रुबाइयात सिंधी। Radio has started simultaneously almost in England and India. Almost at the same time, the external services also has come into existence. The BBC started foreign language broadcast in 1938, while we started our international broadcast on 1st October 1939. Of course, that was started for a different reason altogether. It was basically to meet the propaganda requirements of the then government, to spread the message in addition to what BBC was doing in Afghan region. They started basically for that initially. Subsequently, of course, the external services division has expanded. We have now we are reaching 100 countries in 27 languages. And we do have sizable listeners, especially in Persian, Dari. We have a lot of listeners who keep interacting with us now, of course, through WhatsApp and emails and all that. Just to give an idea as to what are the languages that we, in AIR, External Services Division, we broadcast. We have services in English, of course, General Overseas Service, French, Russian, Swahili, Arabic, Persian, Tibetan, Dari, Chinese, Thai, Burmese, almost all our languages which are spoken in our neighboring countries. We have our own languages like Hindi, Bangla, Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada, Gujarati being broadcast. In addition, we have Urdu, Punjabi, Sindhi, Saraiki, Sinhala and Nepali. Why I am saying this all, although it is available on the website of All India Radio, the students probably can propagate this message while they are discussing with their friends and colleagues. The dominant theme of all programs in External Services Division is to present the reality of India. The reality of India as a strong,
secular, democratic republic, which is vibrant, forward-looking, and engaged in tasks of rapid economic and industrial development. The soft power and our friendly attitude and approach are what we put across through our programs in easy and simple parlance. I welcome all of you to this specific kind of a session, perhaps first of its kind in our department, and I believe also in the life of All India Radio. It is not only Anzar Najmi and Homa who are students of this department working in All India Radio. I have my own batchmate also, Hafizuddin. We both are classmates. And there will be many more. In fact, if you take as a casual artist, except Professor Qasmi is a regular one there, Dr. Shaunak Siddiqui is a regular one there, and many others who are working in All India Radio for many years, in fact. I was just recollecting certain things which I heard from my very senior teachers, like Dr. Sadarangani and others. There are many others also, including Dr. Shivraj Chaudhary, who was working in All India Radio Arabic unit. And one more name, I hope, which is missed by list of Honorable Mr. Naidu. It is Abdul Razak Malihabadi, who was on the Arabic unit, and he was very close to Maulana Azad and wrote the book Meri Zabani Meri Kahani also. And he was also instrumental in establishing of the ICCR basically. Professor Shivraj Chaudhary did his PhD under his guidance, and perhaps many others may be there who we have not named, in fact, and many who are still engaged with All India Radio. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्ज़ सलाम व अदब व एहतराम दराम खिदमत हमें अज़ीज़। जलसे में मौजूद तमाम हाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। यहाँ आने से पहले मैं सोच रहा था कि अंग्रेज़ी में बोलूँ या फ़ारसी में। यहाँ कुछ हज़रात ऐसे भी हैं जो फ़ारसी से नाबलद हैं और बकिया फ़ारसी जानते हैं, इसलिए मैं सोचता हूँ अंग्रेज़ी और फ़ारसी दोनों ज़बानों को मिलाकर चंद जुमले आपकी खिदमत में पेश करूँ। چند جمله رو خدمتتون اصاحه ادب بکنم. With the kind permission of distinguished guests, scholars and dignitaries, عرض خیر مقدم و خوش آمدگویی میکنم به همه ادب دوستان و علاقمندان فارسی و بزرگان جلسه، پیشکسوتان فارسی و شما میهمانان گرامی، خانم‌ها و آقایان و دانشجویان زبان فارسی. शोबे दरी जिसको शुरू करने में आला अफसरान ऑल इंडिया रेडियो के डीजी साहब जो कि पीसी चैटर्जी थे और बरवा साहब जो कि डायरेक्टर थे, उनकी सोच थी कि क्या अफ़गानिस्तान में इस प्रोग्राम को इतना पसंद किया जाएगा, लेकिन उनका ये अंदाज़ बिल्कुल गलत साबित हुआ। क्योंकि जब मैं अफ़गानिस्तान गई तो मैंने देखा कि न सिर्फ स्कूल के तालिबात बल्कि आला काम करने वाले सरकारी अफसरान भी हमारे प्रोग्राम को खूबी से सुनते थे। अगर वो लंच टाइम का 1 बजे होता था, वो जल्दी जल्दी अपना लंच खा लेते थे और हमारे प्रोग्राम को सुनने के लिए बैठ जाते थे। यहाँ तक कि जब मैं अफ़गानिस्तान गई और रशियन रूल वहाँ था एंड आई वाज नॉट सपोज्ड टू क्रॉस द बॉर्डर, अब एम्बेसडर टोल्ड मी, सलमा, यू विल बी डूइंग अ ग्रेव मिस्टेक इफ़ यू विल एवर ट्राई टू डू दैट। मगर हमने किया क्योंकि एक फ्रेंच कपल था जो यूनेस्को में काम करता था और वो लोग जाना चाहते थे पगमान, एंड दे टोल्ड मी कि लेट्स गो, ही विल नॉट कम टू नो। और हम लोग गए और हमको रोका गया, वहाँ पूरी आर्मी थी। बट मोमेंट दे सॉ मी एंड आई हैड पुट माई ब्रोशर ऑन द डैशबोर्ड, दे सॉ मी एंड दे सेड हेलो, नो नो, गो गो, व्हाट कैन, एंड हमको चाय भी पिलाई उन्होंने, मेवे भी खिलाए और हम पगमान जाकर घूम कर भी आ गए। हरुमल सदारंगानी सिंधी साहित्य संसार में आला शायर और बड़े अदीब विद्वान के रूप में पहचाने जाते हैं।
शायरी में उनकी पुस्तकें जो आप लोगों को पता है जो छंदबद्ध हैं, जिनमें हम कह सकते हैं बहर और वजन के साथ लिखी गई हैं, उसमें रंगीन रुबाइयों रूह दिनो रेलो जो 63 में छपा, पिरा जी बाख, कख ए काना और चीख, जिस पर सन 1978 में साहित्य अकादमी ने उनको पुरस्कृत किया। उनको पुरस्कार पहले से ही मिल जाना चाहिए था। और शाह जो शेर और उनका जो शोध प्रबंध है, जो रिसर्च का या जो मकाला है उनका, वो पीएचडी थीसिस उनकी है पर्शियन पोएट ऑफ सिंध। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो सन 1956 में 56 में उनको ये पीएचडी डिग्री अवार्ड मिली थी। चीख पर लेकर के कुछ जिक्र करूंगा। उनकी जो कविताएं हैं जो स्वच्छंद हैं, जो इल्म उलूस नहीं, यानी कि जो स्वतंत्र कविताएं हैं, छंदबद्ध नहीं है, उनका कुछ जिक्र करूंगा। और उसके बाद विभाजन के बाद विरांगे खा पोए जे सिंधी शहर जी चूंड, द सिलेक्शन ऑफ सिंधी पोएट्री आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया, उनकी एक पुस्तक है, एडिटेड वॉल्यूम है, और उसमें से एक कविता लूंगा और उसी में से एक रुबाई लेकर के किस प्रकार उन्होंने अपनी बात रखी है। मैं कच्चा पक्का अनुवाद आप लोगों के सम्मुख रखूंगा। आशा है वो संदेश या उसका अर्थ दूर तक पहुंचेगा। जो चीख है उसमें उन्होंने रोजमर्रा की जिंदगी के खट्टे मीठे अनुभव, आशा निराशा के पलों लम्हों को इस पुस्तक में उन्होंने पिरोया है। सच है कि शायर का जो स्वभाव होता है ना, वो बुनियादी रूप से बहुत ही संवेदनशील होता है। खादिम साहब की नजरों से आसपास की जो घटनाएं थी वो भी छूटती नहीं है। वो बहुत ऐसे घटनाओं पर अपनी पैनी नजर रखते हैं। ऐसे मौकों पर वो एक तंज करते हैं, व्यंग करते हैं और जिंदगी को बेहतर बनाने की ओर जो इशारा करते हैं। उनकी 2 लाइनें देखिए। खादिम साहब की कविता, जिसका सिंधी अनुवाद में नहीं बोल रहा हूँ, उसको सीधे हिंदी में ले आ रहा हूँ। आपके नेता, अंडरलाइन करता हूँ, आपके नेता। उसके देखिए किस प्रकार से उसके अंश देखिए कैसे वो प्रस्तुत करते हैं। कसम है जब तक आपको रास्ता न दिखा दूं, कसम है जब तक आपको रास्ता न दिखा दूं, न मेम्बरी छोड़ूंगा न नेतागिरी, न मेम्बरी छोड़ूंगा न नेतागिरी, आपकी सेवा में सारा जीवन लगा दूंगा। आपकी चिंता मुझे है खुद आपसे भी ज्यादा। क्या मैं नहीं हूं आपका ही मुख, क्या मैं नहीं हूं आपका ही मुख, आपका अपना निजी प्रमुख। कितना तंज है। वे इंसानी रिश्ते नातों को खुलूस व खैरियत के वे इंसानी रिश्ते नातों में खुलूस व खैरियत के शायर हैं। वे पारिवारिक नातों में, रिश्तों में, संबंधों में सद्भावना खोजते हैं। आपकी कविता कश्मकश में वे माता की भावना को पुत्र के प्रति किस प्रकार प्रकट करते हैं, उसकी एक लाइन में बानगी देखिए। जिंदगी हरदम सुख चैन शांति से गुजारना, जिंदगी हरदम सुख चैन शांति से गुजारना, पुत्र मेरे प्रभु सदा आप पर कृपा करेंगे। सामान्य सा वाक्य है लेकिन उन्होंने उसे कविता के रूप में पिरो दिया है। डॉक्टर सदरंगानी शख्सियत सादी। डॉक्टर सदरंगानी एक सादा, पुरकार और जामे शख्सियत के मालिक थे। आप साहिब इल्म थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन औकात ऑल इंडिया रेडियो के शोबे फ़ारसी में अपनी बेशकीमती खिदमात में गुजारे और इज़्ज़त व इकराम के मालिक बन गए। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद डॉक्टर सदरंगानी दिल्ली कॉलेज में फ़ारसी के उस्ताद की हैसियत से फाइज हुए और गैर मुतअद्दिद परेशानियों और नासाज हालात के बावजूद उन्होंने शोबे फ़ारसी को तक़वियत बख्शी। वो सिंधी और फ़ारसी ज़बान के आलिम थे और अपनी ज़िंदगी के आखिरी औक़ात तक इन दोनों ज़बानों की खिदमत करते रहे। मुझे फ़ख्र है कि मैंने ऑल इंडिया रेडियो में उनकी सरपरस्ती में कैजुअल आर्टिस्ट की हैसियत से काम किया। शहदादपुर ज़िला सांगड़ पाकिस्तान में 104 साल पहले पैदा हुए और सदरंगमल उनके जद्द बुजुर्गवार थे। उनका खानवादा तिजारत करता था, लेकिन जैसे जैसे उनके खानवादे के अफराद पढ़ते लिखते गए, सरकारी मुलाजिम होते गए और दीवान कहलाए। उन्होंने अपनी तहसीलात आज के सिंध हैदराबाद पाकिस्तान में पूरी की। उन्होंने इस्माइल कॉलेज बम्बई में भी अक्टूबर साल 1900
I would like to express my gratitude for the authorities of All India Radio, especially Director General Mr. Fayaz Shahryar, Additional Director General Group Captain Pola Anand Naidu, who has kindly accepted our proposal to hold the seminar and then agreed to honor us by presiding over this program. I am very much thankful to the Director of External Services Division of All India Radio, Mr. Amlan Jyoti Majumdar, for his active guidance and cooperation to organize this seminar successfully. At the same time, I want to express thanks from the core of my heart to our administrative staff, especially Mr. Jyotirmoy Roy, Mr. Kalyan Singh, Mr. Thapa, and others, for their cooperation in official activities and arrangements to hold this seminar smoothly. सिंधी, दरी, फारसी, अरबी, उर्दू, हिंदी, सच में अगर आप इनका एक श्रृंखला देखें तो ये श्रृंखलाबद्ध है। आपस में बहुत घनिष्ठता है, निकटता है इनकी, और इन सभी भाषाओं के उन्नयन के लिए इनके मध्य आदान प्रदान ज़रूर आवश्यक है। आदान प्रदान कैसा हो सकता है? वो भाषागत हो सकते हैं, साहित्य के क्षेत्र में हो सकते हैं, संस्कृति के क्षेत्र में हो सकते हैं। इसमें विद्यार्थियों को जोड़ा जा सकता है, विश्वविद्यालय की अनेक गतिविधियों के साथ जोड़ा जा सकता है। इस तरह के प्रोग्राम का इनकाद इल्म और अदब के दायरे को वसी करने की सिमत बड़े मौके को फराहम करता है। रेडियो और मराकज़ इल्मी का बाहमी ताउन इल्म की रोशनी को फैलाने और हर वो कोशिश जो इल्म को फ़रोग़ और तलबा के लिए मुफीद होगी, उसको अमली जामा पहनाने में मील का पत्थर साबित होगा। ऑल इंडिया रेडियो महानिदेशालय के तरफ से और एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीज़न के तरफ से ये सेमिनार घटित करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम 15 बाहरी भाषाओं में ब्रॉडकास्ट करते हैं और हमारी 12 भाषाएं हैं, जिसमें बाहर के देशों में और अपने सारे श्रोताओं को प्रोग्राम पहुंचाते हैं। इसमें पर्शियन और दरी दोनों लैंग्वेज यूनिट्स में डॉक्टर सदार रंगानी साहब ने जो योगदान दिए हैं उसका याद करने का एक मौका है। उसी समय और लोगों को, जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी और ऑल इंडिया रेडियो दोनों साथ आने का निर्णय लिया है और यहाँ के छात्र और जो स्कॉलर्स हैं उनको और थोड़ा प्रेरित कर सकें, ये इस सेमिनार का ऑब्जेक्टिव था। और हम उम्मीद करते हैं कि इससे बहुत लोग प्रेरित होंगे और ऑल इंडिया रेडियो और दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल के बहुत अच्छा काम आगे करेंगे करके ये उम्मीद करते हैं। ऑल इंडिया रेडियो की दरी यूनिट जो ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान और दरी बोलने वाले मुखातबीन के लिए है, उसमें हमारे यहाँ के जो बच्चे जाके दरी यूनिट में ट्रेनिंग लेंगे, ज़ाहिरी बात है कि दरी यूनिट या फ़ारसी यूनिट एक लिविंग एम्बेसडर का काम करती है। हर रोज़ हिंदुस्तानी कल्चर, हिंदुस्तानी सियासत, सकाफ़त, इक़्तिसाद के बारे में बात करती है। हमारे बच्चे कल को हिंदुस्तान की नुमाइंदगी दरी यूनिट के ज़रिए दरी बोलने वाले ममालिक में पूरी तरह से अमल में लाएंगे। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं जनाब अली मशरफ़ ख़ान साहब से। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के शोबे फ़ारसी में सदर हैं और आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, फ़ारसी, दरी, इन दो ज़बानों में क्या रिश्ता है? क्या ये अलहदा हैं या कि एक ही हैं या कि एक दूसरे से मिली जुली हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताऊं कि जो हमारे यहाँ ज़बान का स्ट्रक्चर है, जिसको हम कहते हैं कि तरकीब जिसको इस्तेमाल करते हैं, अल्फाज को जब हम जोड़ते हैं, वो तरकीब फ़ारसी की और दरी की कोई बहुत मुख्तलिफ नहीं है, क्योंकि दोनों के अफ़आल एक ही हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि खुर्दन का माना दरी में भी खाना है
और फ़ारसी में भी खाना है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो दरी में इस्तेमाल होती हैं और वो हिंदुस्तान से गई हैं, या पश्तो ज़बान के अल्फाज हैं जो दरी में इस्तेमाल होते हैं, जो फ़ारसी में नहीं है, जो फ़ारसी में ईरानी उन अल्फाज को नहीं जानते। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि अफ़गानिस्तान में काबुल में कोई आदमी दानिशगाह नहीं बोलता, वहाँ पर पहंतून बोलते हैं। वो पहंतून जो है वो पश्तो ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने आलमोस्ट यूनिवर्सिटी है, सेम, जिसको दरी ने अख्तियार कर लिया है और अब उनके यहाँ मुरव्वज हो गया है वो। अब कोई भी फ़ारसी ज़बान जो अफ़गानिस्तान में रहता है वो यूनिवर्सिटी को दानिशगाह नहीं बोलता, वो पहंतूनी बोलता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि हिंदुस्तान में जो हम फ़ारसी को ज़्यादातर जो समझते, बोलते, लिखते और पढ़ते हैं वो हम ईरानी असरात से करते हैं उसे, और उसकी बेसिक वजह यह है कि हमारा जो ताल्लुक़ रहा है वो ईरान से, यानी अगर कदीम अदवार में बात की जाए तो बिल्कुल ये कह सकते हैं हम कि हम अफ़गानिस्तान से बहुत क्लोज़ थे। लेकिन गुज़श्ता 20, 25, 30 सालों में ऐसे वाक़यात हुए हैं, आप उससे बखूबी जानते हैं, कि जो सियासी एतबार से वहाँ पर नाबेसामानी की कैफियत हुई, उसकी वजह से हम अफ़गानिस्तान से मुनक़ते हो गए और हमारा ताल्लुक़ कायम हो गया ईरान से। अब हमारा लहजा, हमारा स्टाइल, हमारी गुफ्तार, हमारी नविश्तार, जो कुछ भी हम करते हैं वो हम नक़ल करते हैं तेहरान को, हम उसको कॉपी करते हैं। लेकिन आज भी अफ़गानिस्तान में अगर आप किसी से पूछे तो वो ये बताएगा, आगा इन सड़क बे कुजा मीरावत। ये लफ्ज़ जो सड़क है ये फ़ारसी में बिल्कुल नहीं है, कोई ईरानी सड़क नहीं जानता। वो जाद्दा बोलेगा, शाहराह बोलेगा, राह बोलेगा, चार राह कहेगा, वो चौराहा बोलते हैं। वो चपरखट बोलते हैं बेड को, ईरान में कोई चपरखट नहीं बोलता, लेकिन अफ़गानिस्तान वाले दरी वाले बोलते हैं। यानी कि फ़ारसी जो कि खालिस ज़बान कह लीजिए, और दरी जो कि दूसरी ज़बानों से जो उसने असरात लिए हैं, जैसे आपने कहा कि सड़क आ गया उसमें या पहंतून आ गया, तो इस तरह से ये दरी फ़ारसी ज़बान से मुख्तलिफ है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहता हूँ कि बेसिक डिफरेंस नहीं है उनमें, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जो हमारे यहाँ दरी में मुरव्वज हैं वो फ़ारसी में बोले ही नहीं जाते, वो समझे ही नहीं जाते। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक और मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ आपको बोल के बताता हूँ कि हमारे यहाँ काबुल में अगर आप किसी से कहें, ईरान में कहेंगे आप थैंक्स तो कहेगा तशक्कुर, शुक्रिया जिसको हम कहते हैं, लेकिन जब आप काबुल में बात करेंगे तो वो शुक्रिया और मेहरबानी के बजाय कहेगा ढेर मेहरबानी। अब ये ढेर लफ्ज़ जो है आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि हिंदुस्तान का हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है। तो नाज़रीन, ये थी आज की पेशकश। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है ddurduspecials@gmail.com। और इसके साथ ही मोहम्मद मुस्तहसन रिजवी को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। अज़मन चदी गई।